Good morning, children. Today we will discuss first two exercise of triangle chapter, that is 6.1 and 6.2. Now, first exercise, already we have discussed that all the circles are similar because their radius is different but angle is always 360. So, fill in the blanks. First answer will be similar. Similarly, all the squares are also similar because their angles are 90 degree, all the corresponding angles. And all equilateral triangles are also similar. Any isosceles triangle cannot be similar. Only equilateral triangle can be similar because in all equilateral triangles, corresponding angles will be 60 degree. Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. So this was the first question of first exercise 6.1. Now the second question is that you have to give some examples. Pair of equilateral triangles are always similar, squares are always similar, rectangles of different length and breadth are also similar. Similarly, non-similar figures. Now parallelogram and rectangle may be similar, may not be similar. If parallelogram angle is 90, then it is a rectangle. If it is less than or more than 90, then it is a parallelogram only, not rectangle. So in that case, it may not be similar. Now question 3. Question 3, you can see there are two figures. Now in these two figures, the corresponding sides are proportionate. You can see SR upon DC is 1 by 2. RQ upon CB is also 1 by 2. PQ upon AB is also 1 by 2. And PS upon AD is also 1 by 2. But their angles, corresponding angles are not equal. So these figures are not similar. Now let's start with question 6.2 exercise. It is totally based on BPT. Already BPT we have studied basic proportionality theorem. It says that when a line parallel to a side divides the other two sides in equal proportion. So in this figure, DE is parallel to BC, both the figures. So you can write AD upon DB is equal to AE upon EC. So just substitute the values, you will get EC as 2 centimeter. Similarly, in second question also you will get AD is equal to 2.4 centimeters. So it's very simple. Now come to question 2. In question 2, figure is not given. It is said that sides PQ and PR has points E and F. Means PQ साइड पर पॉइंट E है, कहाँ है ये हमें नहीं पता. उसी तरीके से PR साइड पर पॉइंट F है, कहाँ है हमें नहीं पता. लेकिन EF पैरेलल टू QR है. सो इफ वी अप्लाई BPT, वी कैन राइट, अगर हम BPT अप्लाई करते हैं तो E पॉइंट PQ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा. वो इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन उसके रेशो हो जाएंगे PE और EQ. सो PE अपॉन EQ PQ के हो जाएंगे पार्ट्स. उसी तरीके से PR साइड्स पर F पॉइंट है तो उसके रेशो हो जाएंगे PF अपॉन FR. ठीक है. अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है. तो पीपीटी के हिसाब से अगर ये रेशो इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होंगी, नहीं हो तो नहीं होंगी. तो हम हर केस में ये चेक करेंगे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR है या नहीं है. अगर है तो वो पैरेलल है, नहीं है तो पैरेलल नहीं है. तो फर्स्ट केस में हमने वैल्यूज सब्सटीट्यूट की 3.9 अपॉन 3, जो 3 से डिवाइड हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो
कट क्या आ जाएगा 1.3/1 सिंपलेस्ट फॉर्म। उसी तरीके से PF/FR निकाला फर्स्ट केस में, तो वो आया 3/2, 12 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, यानी कि 1.5/1। दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे साइड्स आर नॉट पैरेलल। सेकेंड केस में 4/4.5, अगर 4.5 का हम डेसिमल हटाएंगे तो वो बन जाएगा 40/45, यानी आंसर आएगा 8/9। और PF/FR ऑलरेडी 8/9 है ही, तो दोनों इक्वल है, मीन्स ये दोनों साइड्स EF पैरेलल टू QR है। अब थर्ड केस में आपको EQ की वैल्यू डायरेक्ट दी नहीं है। EQ एक पार्ट है, किसका पार्ट है? PQ लाइन का। PQ में से अगर PE को हम माइनस कर दें तो हमें EQ मिल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे माइनस किया हुआ, क्योंकि PE पूरी साइड है, पूरी साइड हमें दी हुई है 1.28 की। PQ हमें पूरी साइड दी है 1.28 की, और उसमें से एक पार्ट दिया है 0.18 सेंटीमीटर का, तो उसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास EQ की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हम सॉल्व करेंगे 0.18/1.10, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/55। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर जितनी भयानक दिख रही है, क्वेश्चन उतना ही आसान है। सी हाउ इट इज़। अब BPT हम देखते हैं। BPT का एक और एक्सटेंडेड थ्योरम है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दिखते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही है। अब यहाँ पर आप इस ट्राइंगल को देखिए, 1 minute, here you can see question number 3. In this you can see here कि ट्राइंगल ABC जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसमें आपको दिया है ML पैरेलल टू BC। ये आपको दिया हुआ है ML पैरेलल टू BC, मतलब जो ऊपर की साइड है ये आपका जो पॉइंट चल रहा है, इसके दो पार्ट हो जाएंगे AM और MB, और नीचे के भी दो पार्ट हो जाएंगे AL और LC। ये दोनों प्रोपोर्शनेट होंगे। अब अगर मैं कहूँ कि एंगल M और एंगल B बराबर होंगे, ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इनके ये पैरेलल लाइंस होने की वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। सो इफ आई से दैट एंगल M and angle B are equal, similarly angle L and angle C are also equal. So you can say this small triangle AML and this big triangle ABC, they are similar. सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स AM इसकी प्रोपोर्शनेट साइड हो जाएगी AB, तो ये हम लिखेंगे AM/AB। उसी तरीके से इधर AL इसकी प्रोपोर्शनेट साइड हो जाएगी AC, तो AL/AC ये हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, वही चीज़ नीचे वाले ट्रायंगल में भी, ये जो ट्रायंगल है ANL और ट्रायंगल ADC ये प्रोपोर्शनेट होंगे। प्रोपोर्शनेट होंगे तो हम लिखेंगे AN/AD इज इक्वल टू AL/AC, लिख दिया, बाय BPT ही लिख दिया सीधे सीधे। अब आप दोनों इक्वेशन में देखिए कि इनकी राइट हैंड साइड, ये दोनों AL/AC AL/AC दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी, तो हम दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को लिख देंगे कि दे आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरीके के आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, जो गिवन है उसके हिसाब से। पहली चीज़ हमें गिवन है DE पैरेलल टू AC, तो
तो सबसे पहले हमें DE देखना है. दिस वन इज DE एंड दिस वन इज AC. तो DE के लिए ये साइड बनेगी BD अपॉन DA और AC के लिए बनेगा BE अपॉन EC. तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिख लिया, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA. ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया. क्योंकि ये पैरेलल है तो BPT लग जाएगा. अब दूसरा गिवन है हमें DF पैरेलल टू AE. ये रहा DF और ये AE को पैरेलल है. AE को पैरेलल है तो हम इसका एक साइड तो यही रहेगी BD अपॉन DA. दूसरी साइड में थोड़ा चेंज आएगा, ये आ जाएगा BF अपॉन FE. क्योंकि हमें अब ये पैरेलल दिया है AE और DF. तो अब ये दो हमारा इक्वेशन आ गए. BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA. अब इन दोनों की राइट हैंड साइड देखिए, BD अपॉन AD, BD अपॉन DA. DA भी AD है, ये दोनों इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी. तो हम लिख देंगे BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE. तो ये हो गया आपका फोर्थ प्रूफ. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. फिगर जितनी भयानक दिखती है क्वेश्चन उतना आसान होता है. नाउ इट इज अगेन गिवन DE 1 minute. Here it is given DE parallel to OQ. Means this side. DE parallel to OQ. It is given. ये DE है और ये OQ है. तो ये इस ट्रायंगल में आ रही है. PQ और O इस ट्रायंगल में आ रही. तो यहाँ ट्रायंगल में हो जाएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO. ऐसा आ जाएगा. तो ये हमने ले लिया. PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO. ये आपका इक्वेशन 1 बन गया. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट. नेक्स्ट इज DF पैरेलल टू OR. तो DF आपकी ये ग्रीन वाली लाइन देखिए, DF और OR. दिस इज DF पैरेलल टू OR. नाउ वी विल कंसिडर नाउ दिस ट्रायंगल, ग्रीन वन. ग्रीन में आपका हो जाएगा PF अपॉन FR. ये रहा आपका PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO. ये बन गया आपका इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 में आप देखिए राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है. के लिए नॉन पेड वाले के लिए क्या है? सेम. So left hand side will be same. So left hand side you can equate. Here it is equate. So by BPT these are parallel. Okay. Now come to next question. Question number 6. 6 is also similar to 5th question. Here also you can see सिक्स्थ क्वेश्चन सेम है बिल्कुल फिफ्थ जैसा. यहाँ पर AP पैरेलल टू PQ है. सो दिस वन इज योर AP, this one is your AP parallel, AB parallel to PQ. So this one is your AB and this one is your PQ. So we will consider this triangle PQO, this triangle PQO. यहाँ पर PA अपॉन OA
इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ये क्यों लेंगे? क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो बीपीटी से ये साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग हमें दिया है ए सी पैरेलल टू पी आर। नाउ सी सेकेंड वन, ए सी इज दिस साइड और पी आर ये साइड है। तो अब हम ब्लू वन वी विल कंसीडर, दिस ब्लू कंसीडर करेंगे हम। तो यहाँ फिर से वही रेशो आ जाएगा पी ए अपॉन ए ओ, ये तो रिपीट होगा, ओ ए अपॉन ए पी ये रिपीट होगा, और इधर हो जाएगा ओ सी यानी कि ये अपॉन सी आर ये। तो ये आपका हुआ सेकेंड इक्वेशन। ये आप अब इसमें देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी यहाँ इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। Now let's go to, sixth question. Now let's go to seventh question. Seventh question already you are done in 9th class. It's very simple कि D is midpoint. Midpoint का मतलब होता है AD और DB बराबर है, तो AD अपॉन DB की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि AD और DB बराबर हैं। तो अगर हम यहाँ BPT लगाते हैं तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा BPT से, लेकिन AD और DB की वैल्यू 1 है तो हम AD और DB की जगह 1 लिख देंगे, मतलब AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो AE इज इक्वल टू EC बन जाएगा। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही फिगर है, अब इसमें उल्टा किया है कि AD अपॉन DB तो 1 है, AE अपॉन EC भी 1 है। आपको ये बताना कि ये दोनों प्रोपोर्शनेट हैं और DE पैरेलल टू BC है। तो DE पैरेलल टू BC तभी होगी जब ये प्रोपोर्शनेट होंगे। अब दोनों इक्वल टू 1 है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बोथ आर इक्वल टू 1, दैट्स वाई AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 and AE upon EC is also 1. So this will be, this you can write that the lines are parallel. Which two lines are parallel? BC parallel to DE. Now question number 9. 9 is very important question, हमेशा आता है। ABCD trapezium with AB parallel to DC, यानी यहाँ ऑलरेडी दिया है कि AB और DC साइड्स पैरेलल हैं, और AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये वाला ट्राइंगल, इसके ये वैल्यूज दी हैं AO अपॉन BO, और दूसरी वैल्यूज जो हैं वो इस ट्राइंगल की दी है CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। तो ये वैल्यूज हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं? तो हमारे पास कुछ भी पैरेलल नहीं गिवन है, इसलिए हम पहले एक पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। हमने ये एक EO पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ से हमने एक EO पैरेलल ड्रॉ किया, ये पैरेलल है। पैरेलल है तो अब हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कोई सा भी एक ट्राइंगल। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि EO पैरेलल टू DC है और DC पैरेलल टू AB है, दैट्स वाई AB और DC, AB, EO और DC ये तीनों पैरेलल हो जाएंगी। हमने यूक्लिड में पढ़ा है कि एक साइड दूसरी को पैरेलल है, दूसरी तीसरी को पैरेलल है, तो फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल होती हैं। तो ये 3 पॉइंट हमने यहाँ मेंशन कर दिए। अब ये तो हो गया कि ये तीनों पैरेलल हैं, AB, EO और DC। अब पैरेलल हैं तो हम फर्स्ट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे AE अपॉन ED, ये रहा A, D और B, ये वाला हमने फर्स्ट ट्राइंगल कंसीडर किया, दिस वन। अब इस ट्राइंगल में AE, दिस वन, अपॉन ED ये इज इक्वल टू हो जाएगा BO ये अपॉन DO, ये हो गया। तो हमने ये पहला इक्वेशन लिख लिया, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट ट्राइंगल EO पैरेलल टू DC। अब हम ये नीचे वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल में आप देखिए AE और ED, ये तो यही रहेंगे, ये रहा AE और ये रहा ED, ये तो यही रहेंगे AE और ED। लेकिन अब इधर क्या चेंज हो जाएगा, AO एंड CO, ये चेंज हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हम दोनों इक्वेशन देखेंगे कि इसमें इधर भी ये है और इधर भी ये है, यानी LHS दोनों के सेम है। तो हम RHS को इक्वेट कर लेंगे, BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO। अब हमें जो आंसर चाहिए वो ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस करने से ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये आपके क्लियर आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन भी वही है कि एक डायगोनल है जिसमें क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट करते, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल में। इट इज नॉट गिवन दैट इट इज ट्रेपेजियम। आपको प्रूफ करना है कि AB पैरेलल टू DC है। जब ये पैरेलल प्रूफ करेंगे तभी वो ट्रेपेजियम प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कुछ भी पैरेलल नहीं है, तो किसी भी एक साइड से हम पैरेलल बना लेंगे। सपोज EF पैरेलल टू AB बना लिया, AB इसका बेस है, उससे पैरेलल एक लाइन EF ड्रॉ कर ली। अब पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं, अब नॉट लिख सकते हैं, इट इज ऑलरेडी गिवन AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये दिया हुआ है। अब हमने इसे पैरेलल कंसीडर किया तो ये हो जाएगा ट्राइंगल DAB में। पहले ट्राइंगल हम DAB देखेंगे। DAB ट्राइंगल में हम देखेंगे, ये रहा हमारा DAB ट्राइंगल। इसमें देखेंगे हम DE ये अपॉन EA इज इक्वल टू हो जाएगा DO अपॉन OB। तो ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ये लिख लिया हमने। अब हम उल्टा ट्राइंगल लेंगे। उल्टा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये वाला, ऊपर वाला उल्टा ट्राइंगल, दिस वन। यहाँ पर भी आपको वही मिल जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ये मिल जाएगा आपको दूसरा इक्वेशन। अब इसमें आप देखेंगे तो आपके राइट हैंड साइड इक्वल है। कहाँ से इक्वल है, ये गिवन से इक्वल है, इसकी वजह से इक्वल। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो वी कैन सेड दैट लाइंस आर पैरेलल एंड proportionate. Okay, so this is your exercise.